on Zn staining and revision of spots. Okay. So Zn stain is a type of differential stain. So differential stain means it helps us to differentiate between two organisms. In Zn, we see acid-fast organism, and the other differential stains other than Zn are Gram stain and Albert stain. So in Gram stain, we differentiate between positive and Gram negative, and in Albert, we can see the granules, the black granules, and the bacilli stained as green. So the main principle of Zn staining is there are certain organisms who have mycolic acid in the cell wall, and due to the presence of mycolic acid, they cannot be stained by Gram stain because it is they are very high in lipid content. So Zn stain is lipid soluble stain. It has carbon fusion, which is lipid soluble. So we can stain these organisms by means of Zn stain. So this slide explains the procedure how to do Zn staining. So first, you take a slide and you prepare a smear, and then you will apply carbon fusion. This is the primary stain, the carbon fusion. Then second step is heating. So heating acts as mordant. It helps in better penetration of the dye into the cell wall. So, but third step is decolorization. So you decolorize with the help of acid alcohol, and the fourth step is counter staining. So in Zn, we use methylene blue or malachite green as counter stain. So the procedure is make a thin smear and then heat fix the smear by passing slide 3-4 times through the flame, and make sure that you do not overheat the smear. Then place the slide on the staining rack and pour carbon fusion over the smear and heat gently under the underside of the slide. And you have to heat until the fumes appear without boiling. Do not overheat and allow it to stand for 5 minutes. Then you will do this step 2-3 times. Then third step is you will rinse the smear with water until no color appears in the filament. Then third step is decolorization. So for Mycobacterium tuberculosis, we use 20% sulfuric acid as a decolorizer. So you will pour 20% sulfuric acid and you will wait for 1 minute, and you will keep on repeating this step until the slide appears light pink in color. So you will do this step for at least 15 to 20 seconds. Then again you will wash the slide with clean water, and then the last step is counter staining. So you will counter stain the slide with methylene blue or malachite green for at least 1 to 2 minutes. Then after 1 to 2 minutes, you will wash the stain, wash the slide with clean water. You will wash the back of the slide, not the front. Okay. Then you will examine the slide under 100x oil emulsion. So what you will see? You will see acid-fast bacillus. So acid-fast bacillus are pink thread-like bacilli, pink thread-like beaded bacilli against a blue background if you are using methylene blue as a carbon fusion, methylene blue counter stain, or against green background if you are using malachite green as counter stain. So the purpose of counter staining is to provide the contrast. The bacillus gets stained by the carbon fusion and then colorized with acid alcohol. And again, this is another slide showing acid-fast bacillus. They are pink in color, thread-like, beaded in appearance, against the blue background due to methylene blue. Then, other than Mycobacterium tuberculosis, there are other organisms which are also acid-fast. Acid-fastness means they resist decolorization by acid alcohol due to presence of mycolic acid in the cell wall. So, higher the content of mycolic acid, higher will be the resistance they offer against decolorization. So Mycobacterium tuberculosis has very high content, so it will resist decolorization by 25% sulfuric acid. Mycobacterium leprae has low amount of mycolic acid in its cell wall compared to mycotuberculosis, so we use 5% sulfuric acid for its decolorization. Then Nocardia, we use 1%. Then there are certain parasites also which are acid fast, like Cryptosporidium, Cyclospora, Cystoisospora, Microsporidia, then eggs of Saginata, eggs of Schistosoma mansoni. So for these,
we use 1% sulfuric acid for decolorization. Then bacterial spore, we use 0.5 to 0.5% sulfuric acid. Sporhead 0.5 to 1%. And Legionella 0.5 to 1%. Then this was the one I explained was hot method of Zn staining. Then there is a modification of Zn staining called as cold acid fast staining or ion staining. So cold means we do not apply any heat. So it's a cold method, no heat is applied. Since we are not applying any heat, so we increase the concentration of carbonyl fusion. So this no mordant is there, we increase concentration of carbonyl fusion. So that's all with Zn staining. Now we'll discuss the spots. So this is a blood agar plate with golden yellow beta hemolytic colonies, but hemolysis is not so evident, but these are golden yellow colonies, pinhead size. So this is Staphylococcus aureus on blood agar. Then this is also blood agar, but as you can see, the colonies are pinpoint in size. They are smaller in size as compared to this Staphylococcus aureus. Okay, and the color is also not golden yellow. Isme staph you can see golden yellow color, pinhead size of the colony, and also beta hemolytic. But in this, the colony size is small, so we describe these colonies as pinpoint size colonies. But and in this picture, you can appreciate beta hemolysis. है ना? Hemolysis है. Hemolysis zone of hemolysis is more than the size of the colony. Okay, so these kind of colonies are seen in beta hemolytic Streptococcus. Okay, this is Streptococcus pyogenes on blood agar. Third, this is also blood agar, and this is the growth of Proteus in blood agar. So Proteus swarms on blood agar. So swarming you can see as the growth in concentric circles. So this phenomena is known as swarming. Okay, Proteus swarms on blood agar. So swarming is seen as concentric circles. Fourth, this is MacConkey showing growth of lactose fermenting colonies. So you must know the constituent of MacConkey. In MacConkey agar, the sugar is lactose and the indicator is neutral red. Okay, so if the bacteria ferments like lactose, so the colony, the neutral red in acidic media converts into pink color. Okay, so since E. coli is lactose fermenting bacteria, so the growth of E. coli on MacConkey agar is seen as lactose fermenting pink colonies, and the colonies are flat as you can see. Okay, and this is also MacConkey agar. Please ignore these yellow one colony. Focus on only these pink colonies. This is also MacConkey agar, lactose fermenting pink colonies, and also you can see mucoid colonies. So mucoid colonies are seen in Klebsiella. This is the nutrient agar, and the colony green in color. So Pseudomonas aeruginosa produces such kind of colonies on nutrient agar, and the green color of the colonies is due to production of pigment, pyocyanin pigment, which Pseudomonas aeruginosa produces, and this pigment is diffusible. So the pigment has diffused in whole of the medium. So Pseudomonas aeruginosa gives green color pigmented colonies with diffusible green pigment. Okay, then next is MacConkey agar. The colonies are not pink in color, they are pale in color. So this organism does not ferment lactose. Okay, so these are non-lactose fermenting colonies, pale colored colonies, non-lactose fermenting colonies on MacConkey agar. So non-lactose fermenters are Proteus, Salmonella, Shigella, Acinetobacter, and Pseudomonas. Pseudomonas also gives such kind of colonies MacConkey agar. Green colored colonies we see on nutrient agar, but on MacConkey agar, Pseudo is also seen as non-lactose fermenter. So then we can differentiate between these organisms on the basis of chemicals and motility. Like
we can differentiate between Salmonella and Shigella on the basis of motility. So Salmonella is motile, Shigella is non-motile. So in exam, you will get these states, ठीक है, इक्वलाई मिलेगा, न्यूट्रिएंट में सूट मिलेगा, बट तुम्हें कंफ्यूजन होगी नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में, ठीक है, बिकॉज साल्मोनेला विल आल्सो बी गिवन एंड शिगेला विल, ठीक है, तो साल्मोनेला एंड शिगेला को तुम डिफरेंशिएट करोगे. if it is motile, then non lactose fermenter में कौन किएगा प्लस motile, तो your organism will be salmonella. बट अगर वो नॉन मोटाइल है तो it will be shigella में मिलेगा. तो तुम कॉलोनी देख पहचान जाओ कि हाँ ये ग्रीन कलर की कॉलोनीज हैं, तो इट्स स्यूडोमोनास. ठीक है. फिर नेक्स्ट व्हाट इज VDRL स्लाइड. सो VDRL इज अ टाइप ऑफ स्लाइड फ्लोक्युलेशन टेस्ट. ठीक है. क्या दिखता है हमको इसमें? फ्लोक्यूल्स दिखते है ना, रिएक्टिव होगा तो फ्लोक्यूल्स दिखेगा. ठीक है. फिर इसको इट्स आल्सो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस. नॉन स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज में हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम डिटेक्ट कर रहे हैं रिएजेंट एंटीबॉडीज. ठीक है. स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं हम, इसमें हम रिएजेंट एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कार्डियोलिपिन एंटीजन. ठीक है. कार्डियोलिपिन एंटीजन यूज कर रहे हैं हम, ट्रिपोनिमल एंटीजन नहीं यूज कर रहे हैं, कार्डियोलिपिन एंटीजन यूज कर रहे हैं, इसलिए हो गया हमारा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस. ठीक है. सो VDRL क्या क्या एडवांटेजेस है? एक तो हम स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं सिफिलिस के लिए. ठीक है. सेकेंड एडवांटेज इज डिजीज प्रोग्रेस. इसका प्रोग्रेस हम देख रहे हैं. अगर पेशेंट का पॉजिटिव एक बार VDRL आ गया, फिर पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर हम उसका रिपीट बार VDRL कराएंगे. ठीक है. तो अगर इफ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, हमारे जो VDRL टाइटर्स हैं वो फॉल करेंगे. ठीक है. अगर ट्रीटमेंट फेलियर होगा तो टाइटर जो है अनचेंज होंगे या फिर वो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. और हमारा हम ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? biological false positive. ठीक है. तो VDRL is also positive in other unrelated diseases. ठीक है. जैसे infectious mononucleosis हो गया. ठीक है. इन सब पेशेंट को VDRL पॉजिटिव होगा. उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस लगाएंगे. स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस इज PHA, TPPA. ठीक है. वेल्स हैं ये, तो 96 होते हैं, ऐसे लेबल्ड होता है. यहाँ पे ABC होता है, यहाँ पे ये 1 से लेकर 12 तक रोज होती हैं. ठीक है. हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर एलाइजा. सारे एलाइजा हम माइक्रोटाइटर प्लेट में करते हैं. और हम क्या करते हैं? ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन से. ठीक है. जो हमारा सिफिलिस जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है TPHA, वो भी हम माइक्रोटाइटर प्लेट में ही करते हैं. Then this spot is latex agglutination tile. ठीक है. तो क्यों यूज कर रहे हैं इसको? लेटेक्स एग्लूटिनेशन के लिए. ठीक है. तो एग्लूटिनेशन हमें कैसे दिखेगी? विजिबल ऐसे क्लम्स दिखेंगे. ठीक है. तो ये वाला हमारा दिस इज पॉजिटिव है. ये वाला इसमें हमारी स्मूथ मिल्की इमल्जन दिख रहा है, ये एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है. ठीक है. सो हमारा कैसे दिखेगा हमें? सो लेटेक्स एग्लूटिनेशन इज ऑब्जर्व व्हेन अ सैंपल कंटेनिंग अ स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी, व्हेन एंटीबॉडी और एंटीजन is coated on the surface of latex particles. ठीक है. लेटेक्स के पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर हमारा कोटेड होता है एंटीजन या एंटीबॉडी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी हमारा सैंपल में होता है. ठीक है. तो अगर हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन विजिबल होगी. ठीक है. क्लम्पिंग होती है, एग्लूटिनेशन को हम क्लम्पिंग बोलते हैं. ठीक है. तो हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसमें हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन यूज करते हैं? आर फैक्टर है, C रिएक्टिव प्रोटीन है, ASO है, स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रुपिंग के लिए भी यूज लेटेक्स एग्लूटिनेशन, और हमारा Cryptococcus antigen detection. ठीक है. So these are the tests in which we use latex agglutination. अच्छा, ये ब्लैक कलर की है बिकॉज व्हाइट एग्लूटिनेशन है ना, तो हमें जो ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट हमें व्हाइट दिखेगा, इसलिए हमारा व्हाइट ब्लैक कलर की टाइल होती है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट. ठीक है. रैपिड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज रिजल्ट हमें 15 to 20 मिनट्स में आ जाता है. ठीक है. इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी क्यों है? बिकॉज इसका प्रिंसिपली इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी है. ठीक है. और ये हमारा लेटरल फ्लो ऐसे है, लेटरल इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट. जो सैंपल है हमारा वो लेटरली फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सैंपल पैड होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट पैड होगा. ठीक है. फिर हमारी कंट्रोल लाइन होगी, टेस्ट लाइन होगी. ठीक है. तो हमारा कंट्रोल शुड ऑलवेज कम. अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो टेस्ट इज इनवैलिड. ठीक है. और अगर हमारा टेस्ट में टेस्ट और कंट्रोल भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, तो हमारा वो रिएक्टिव हो गया. ठीक है. कंट्रोल में आ रहा है, सिर्फ टेस्ट में आ रहा है, तो वो इनवैलिड है.
कौन टेस्ट है जहाँ पर हम रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट कर रहे हैं? एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन डिटेक्शन बाय मींस ऑफ रैपिड, ठीक है। फिर मलेरिया एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड पी फैल्सिफेरम, ठीक है। एंटीबॉडीज हम अगर डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हैं, और एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं, HIV-1 और HIV-2 के अगेंस्ट, और हमारा आरके39 जो काला जार के लिए करते हैं वहां पर हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है लेटरल ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट का। ये एनालाइट है, एनालाइट मीन सैंपल, ठीक है। तो सपोज करो हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो सैंपल के अंदर हमारा एंटीजन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्जुगेट पैड है। कॉन्जुगेट पैड में क्या होता है, हमारी ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती है, तो हमारी कॉन्जुगेटेड होती है या टैग होती है विद जो हमारा जो हमारा कलर प्रोड्यूस करेगा या फिर गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने एनालाइट डाला, तो हमारा जो एनालाइट इसके साथ बाइंड करेगा, जो हमारे कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और फिर वो कैपिलरी फ्लो के थ्रू इस साइटोसेलुलोज मेम्ब्रेन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ एक टेस्ट लाइन होती है, कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन हमेशा टेस्ट लाइन की बात होती है, ठीक है। वो इंश्योर करता है कि हमारा जो पूरा ये कैपिलरी फ्लो पूरी इसमें हुआ है, पूरी कैसेट में हुआ है, ठीक है। टेस्ट लाइन में क्या होता है, जो एंटीजन हम डिटेक्ट करेंगे ना उसके अगेंस्ट उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से होती है। और कंट्रोल लाइन में क्या होगा, जो हमारी ये वाली एंटीबॉडीज है ना इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने डाल दिया सैंपल जिसमें एंटीजन है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया, अभी मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे सैंपल में वो एंटीजन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट लाइन में है ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, है ना, देखो बाइंड कर गया, ठीक है। और कंट्रोल लाइन हमेशा नहीं चाहिए, तो कंट्रोल लाइन कैसे आएगी, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज होंगी ना यहाँ पर, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो क्या करेंगी, वो फिर यहाँ करके कंट्रोल में बाइंड करेंगी, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी कंट्रोल में है ना। तो फिर जो हमारे अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो इससे बाइंड करेंगे कंट्रोल लाइन में आकर के, और फिर वो कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडल जार, ठीक है। ऐसे देखना, ऐसे ग्लास का होगा जार, उसके अंदर एक कैंडल जरूर होगी, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं जो हमें जिनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। डोंट कंफ्यूज देम विद अदर ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, फिर माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं, है ना, उनसे कंफ्यूज नहीं करना। माइक्रो एरोफाइल्स में क्या होता है, मतलब उनको ऑक्सीजन कम चाहिए, CO2 तो उनको जितनी चाहिए नॉर्मल होती है उतनी चाहिए एटमॉस्फेरिक CO2 के बराबर, बट उनको नीड अ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। कैप्नोफिलिक को ज्यादा चाहिए, दे रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 देन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, निजेरिया हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। तो दीज ऑल आर कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। हम क्या करते हैं, हमने सपोज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ठीक है, हमने क्या किया, हम ब्लड अगार लिया, ब्लड अगार पे स्ट्रीक किया और हमें उसकी ग्रोथ प्रमोट करानी है, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या ये इस लिड का जार इस जार का lid खोलेंगे और ब्लड अगार की पीक हम इसमें रख देंगे कैंडल जार में, ठीक है। फिर हम इस कैंडल को बर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस और इसकी लिड को बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जब तक इसमें ऑक्सीजन रहेगी वो कैंडल जलेगी। द मोमेंट द ऑक्सीजन जो हमारी यूज अप हो जाएगी तो ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। फिर जब कैंडल बुझ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस जार को एज इट इज इनक्यूबेटर में रख देंगे, ठीक है। फिर हम दोबारा इस जार को नहीं खोलेंगे, इस जार को एज इट इज प्लेट्स हम इंक्यूबेटर रख देंगे, फिर हम नेक्स्ट डे ग्रोथ के लिए देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पॉट इज टिश्यू कल्चर बॉटल। तो ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी फ्लैट सी, ठीक है। So these tissue culture bottles are used for cultivating clinical samples suspected of having a virus. ठीक है, तो इनका क्या यूज है, दे हेल्प विद द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वायरसेस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, जो हमारे जो भी एनिमल सेल्स है हम पहले इस टिश्यू के बॉटल में ग्रो कराएंगे, ठीक है। ऐसे मोनोलेयर ऑफ सेल्स इसमें हम रखें, ग्रो होगी, उसके बाद में फिर इन जो सेल की जो लेयर है उसको इन्फेक्ट करेंगे विद द वायरस, ठीक है। फिर हम उसमें देखेंगे साइटोपैथोजेनिक इफेक्ट देखेंगे, CPE देखते हैं, ठीक। तो कुछ कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारे क्रिनेशन करा देते हैं, फिर कुछ राउंडिंग ऑफ सेल्स करा देते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPE हम वायरस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और भी हमें बहुत
और भी टेस्ट जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वायरस कौन सा। देन नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड कल्चर बॉटल. So this is how blood culture bottle looks like. It contains of this liquid. Liquid is broth, broth for which will promote the growth of the microorganism if present in the blood. So generally this liquid is nutrient broth or brain heart infusion broth, and also, and since these bottles are of automated blood culture, so they will also have some resins. So the function of resins is they neutralize the, if any antibiotics present in the blood, so they will neutralize the effect of those antibiotics or the inhibitors. ठीक है. फिर क्या है हमारा ब्लड कल्चर हम क्यों कर रहे हैं? टू डिटेक्ट बैक्टीरिया और फंजाई इन द पर्सन ब्लड. ठीक है. अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बैक्टीरिया हो गया है, एनीमिया है, मतलब अगर पेशेंट को फीवर है, तो इस केस में हम ब्लड कल्चर लेते हैं. ठीक है. फिर हम क्या, हमने ब्लड लिया, ठीक है, 5 to 10 ml ऑफ ब्लड लेते हैं एडल्ट पेशेंट. ठीक है. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं बिफोर टेकिंग ब्लड? द पेशेंट जो है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने से पहले ब्लड लेना है उसका. ठीक है. आफ्टर पेशेंट का अगर एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट हो गया उसके बाद नहीं लेना, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव है. ठीक है. अच्छे से जो हमारा एरिया उसको क्लीन करना है फिर लेना है. ठीक है. और अच्छा, 2 सेट्स में लेते हैं हम हमेशा ब्लड का, एक एरोबिक के लिए लेंगे, एक एनारोबिक के लिए लेते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर और क्या होता है मैंने बता दी. तो ब्रॉथ होता है, रिज होता है, साथ में हमारा एंटीकोगुलेंट भी होता है. तो मेनली जो हमारा जो मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट होता है वो हमारा होता है सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फेट. ठीक है. एसपीएस, सल्फोनेट, सॉरी. ठीक है. तो एसपीएस क्यों यूज करें? बिकॉज इसका जो है लीस्ट इफेक्ट होता है ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. लीस्ट इनहिबिटरी होता है, इसलिए इसमें एसपीएस होता है. ठीक है. सॉल्व विद द स्पॉट्स. इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क. Why 10% of sulfuric acid being used for different microbes? Because different organisms have different concentration of mycolic acid in the cell wall. ठीक है. mycolic acid हमारा जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, और सॉरी, लिपिड बेसिकली वो हाई कंटेंट लिपिड होता है ना. तो जो हमारा ग्राम होता है, ग्राम स्टेन होता है, वो लिपिड सॉल्युबल होता है. तो इसलिए हम इनके लिए कार्बन फ्यूजन यूज करते हैं, बिकॉज कार्बन फ्यूजन जो होता है लिपिड सॉल्युबल होता है. अब जिस जिस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में जितना ज्यादा माइकोलिक एसिड होगा उतना ज्यादा हमें एसिड अल्कोहल चाहिए उसको डिकलराइज करने के लिए. ठीक है. तो ट्यूबरक्लोसिस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में हाई कंसंट्रेशन होता है, इसलिए हम उसमें 25% यूज करते हैं. बट लेप्री में इतना ज्यादा नहीं होता माइकोलिक एसिड, तो इसलिए हम उसको डिकलराइज करने के लिए वी यूज 5% सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. स्वॉमिंग क्या होती है? स्वॉमिंग, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ. ये सिर्फ कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है ना, ये इसको हम स्वॉर्मिंग बोलते हैं. ठीक है. ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो ग्रोथ है, ये स्वॉर्म सेल्स होते हैं. ये प्रोटीज के अंदर स्वॉर्म सेल्स होते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है ना, तो वो स्वॉर्म कर जाते, मतलब वो ग्रो कर रहे हैं. तो प्रोटीज का एक ग्रोथ पैटर्न होता है कि वो ऐसे स्वॉर्म करके ग्रो करता है, और जो स्वॉर्मिंग होती है ना, हमें ब्लड में ही दिखती है. ठीक है. फिर कुछ कुछ मेथड्स भी होते हैं स्वॉर्मिंग को इनहिबिट करने के लिए. ठीक है. जैसे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगार ब्लड में बढ़ा दें, हमारा स्वॉर्मिंग इनहिबिट होती है. अगर हमने कुछ सॉल्ट डाल दिया तब इनहिबिट हो जाती है स्वॉर्मिंग. ठीक है. तो हमारा एक क्लेड मीडिया होता है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया. ठीक है. तो वो हमारा स्वॉर्मिंग को इनहिबिट करता है. ठीक है. मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट जो भी मीडियाज होते हैं वो स्वॉर्मिंग को इनहिबिट करते हैं. ठीक है. हम्म. वो लोग रिस्पॉन्स पता नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं करता. नहीं भी कर रहे हैं.
The anticoagulant in blood culture is sodium polyethyl sulfonate, SPS. और क्या doubts हैं क्या?